Don't text you, don't text me. Text that fellow behind the tree. Hello, friends. I'm CA Saurabh Mani, and today I'm here with another presentation on tax planning. As I started on a lighter note, that nobody's willing to pay tax and nobody's happy to pay tax, and everybody try to find out the ways to save the tax. So, but yes, we should be a wise taxpayer, but parallelly, we should look to get the benefit of available exemptions and deductions as per Income Tax Act. So, a penny saved is a penny earned. Likewise, if we'll be able to save a single penny out of the tax by using the maximum available exemptions and deduction as per Income Tax Act, so we will be having an opportunity to invest those saved tax and to get additional earning. So someone has very rightly mentioned that a penny saved is a penny earned. So we'll start. What is tax planning? Tax planning can help in saving taxes and increase real income. So this is the motto of tax planning. भी हम अपना टैक्स सेव करें और अपनी रियल इनकम को इंक्रीज करें. Tax planning aims to reduce one's tax liability by optimally utilizing tax exemptions and deductions as available under different sections of Income Tax Act. So tax planning का मतलब ये है अभी हमें जितनी भी अवेलेबल एग्जाम्पशंस हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर वो हमें प्रॉपरली यूटिलाइज करनी है. Tax planning is a legal way of reducing the tax obligations, unlike tax evasion, which is a crime. सो टैक्स प्लानिंग को हमें कंफ्यूज नहीं करना टैक्स अवॉइडेंस के साथ. टैक्स प्लानिंग का मतलब यह है कि हमें टैक्स इनकम टैक्स एक्ट को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपने टैक्स को सेव करना है. कोई इलिजिटिमेट वेज को अडॉप्ट नहीं करना है. टैक्स सेविंग शुड एक्ट एज एन एडिशनल पर्क एंड नॉट जस्ट अ प्लान और गोल ओनली. एज ए अर्लियर मैंशन, हमें टैक्स प्लानिंग भी करनी है और विद नॉट ओनली विद द गोल बट उसको एज अ एडिशनल पर्क में कन्वर्ट करना है. वो दैट आई डिस्कस वन बाय वन. अ वेल वर्स्ड प्रोफेशनल कैन हेल्प यू इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टैक्स एग्जाम्पशंस. जिसको इनकम टैक्स की नॉलेज है, सारे सेक्शंस की नॉलेज है और कुछ हम अपनी अवेयरनेस के साथ ही वी कैन हैव अ प्रॉपर टैक्स प्लानिंग. So next point is important point to keep in mind for proper tax planning. So these are the different points which we should kept into our mind. Start tax planning at the beginning of a financial year and not at the end. This is the prime most thing that we should start tax planning from 1st of April of particular financial year and not at the end of a quarter or say in the month of March. सो हमें अप्रैल से ही अपनी टैक्स प्लानिंग जो है वो स्टार्ट करनी है. और मतलब साल के शुरू होते ही होता क्या है, वी यू जनरली वी डज प्लानिंग और हम सारा उसका जो चेक करते हैं कैलकुलेशन वो लास्ट क्वार्टर में या फिर लास्ट मंथ में फाइनेंशियल ईयर के, यानी कि मार्च में हम देखते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. चेक द एग्जिस्टिंग कंपल्सरी टैक्स सेविंग एक्सपेंसेस लाइक ट्यूशन फीस, EPF contribution, home loan repayments. That is those expenses or outflows which can not be avoided. हमें सबको पता है कि 80C के अंदर वी आर हैविंग ऑप्शंस टू इन्वेस्ट एंड टू क्लेम सर्टन एक्सपेंडिचर. तो हमें पहले ही देख लेना है स्टार्टिंग में ही फाइनेंशियल ईयर के अपना एक बजट छोटा सा बना के भी हमारा आने वाले टाइम में ट्यूशन जो फीस है बच्चों की, या हमारा जो EPF कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी जा रहा है या होम लोन प्रिंसिपल पेमेंट्स हैं उसका टोटल क्या बनता है. फिर हमें देखना है वो 1.5 लाख से कम है अगर तो हमारे पास कितना मार्जिन है और 80C के बेनिफिट्स को वेल करने के लिए हम फर्दर इन्वेस्ट कर पाएँ. उसी हिसाब से हमें अपनी टैक्स प्लानिंग करनी है और हमें 80C का 100% बेनिफिट लेना है. मेक एन एनुअल बजट ऑफ इनफ्लोज and plan saving or investments considering the margins available under Section 80C after deduction of compulsory tax saving expenses to avail the maximum available benefit of deduction of rupees 1.50 lakhs. Choose saving investment plans very wisely.
कंसिडरिंग द फाइनेंशियल गोल एंड रिस्क इन्वॉल्व इनटू द सेम। अब ऐसा नहीं है भी हमें सिर्फ टैक्स सेव करने के चक्कर में कोई प्लान ले लेना है, कोई भी इंश्योरेंस प्लान उठा के ले लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें प्लान भी वो देख के लेना है जो हम अपने एक प्रॉपर गोल को ध्यान में रखते हुए वो प्लान लेना है। मतलब अगर ये नहीं है भी कोई भी एल का या किसी भी एक्स वाई जेड कंपनी का प्लान ले लिया विदाउट नोइंग द एग्जैक्ट बेनिफिट आउट ऑफ इट, और क्या उसका एग्जैक्टली जो रहेगा मतलब जो आपके इन्फ्लोज रहेंगे आने वाले टाइम में, उसको इग्नोर किए हुए वी कैनॉट डू लाइक दिस। हमें प्रॉपर, अगर हमारे माइंड में कोई गोल है भी, हमें आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम हमें कुछ उसकी फंड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उस हिसाब से प्रॉपर टैक्स प्लानिंग में भी उसी तरह की सेविंग्स को अडॉप्ट करना चाहिए। नेवर मेक ए हैस्टी investment or take a saving or insurance plan without critically analyzing the risk and expected rewards, as I already mentioned. What should be our priorities? Our priorities should be to avail deduction under Section 80C to the maximum extent with proper advance planning, considering the goals of savings investment in mind. To avail deduction under Section 80D, that is towards medical insurance and medical expenditure of senior citizen in the family. 80D को कैसे मटेरियलाइज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है टैक्स सेविंग के लिए, वो मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा आपको। टू अवेल प्रॉपर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन होम लोन अंडर सेक्शन 24 एंड ऑन प्रिंसिपल पेमेंट अंडर सेक्शन 80C। आई थिंक ये तो जनरल सी टर्म्स है, सबको पता है, इसको हमें मैक्सिमम एक्सटेंट से यूटिलाइज करना है। टू अवेल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G ऑन द चैरिटी फंड एज पेड टू नोटिफाइड इंस्टीट्यूशंस इफ एनी। कई बार हम चैरिटी करते हैं और विदाउट नोइंग द फैक्ट दैट उस पर भी हमें बेनिफिट मिलता है, इनकम टैक्स के अंदर एग्जम्पशन मिलती है 80G के अंदर, तो हमें अगर हम कुछ चैरिटी करते हैं तो उसका बेनिफिट भी हम ले सकते हैं। टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E ऑन इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन इफ एनी। अपने लिए या अपने बच्चों के लिए या कुछ भी हायर स्टडीज़ के लिए अगर कोई एजुकेशन लोन लिया है, उसका भी इंटरेस्ट का बेनिफिट वी कैन टेक अंडर सेक्शन 80E, और हमें ये सेक्शंस का पता होना चाहिए। सेक्शन वाइज ऑप्शन 80C। Option under section 80C, maximum limit is 1.50 lakhs, and there is as you all aware, there is additional section 80CCD, subsection 1B, where additional rupees 50,000 is availed as deduction if we invested it into NPS, National Pension Scheme. So scheme wise, I have just given a highlights of all the options which we are having under 80C. बैंक फिक्स डिपॉजिट्स, वी कैन गो फॉर फिक्स डिपॉजिट फॉर 5 years, उसका लॉक इन पीरियड 5 साल का रहता है। देन PPF इज अ वेरी गुड ऑप्शन एंड लॉक इन पीरियड ऑफ इज ऑफ 15 years। नेशनल सेविंग स्कीम्स 5 years, म्यूचुअल फंड्स 3 years, this is a minimum lock-in period. Then unit-linked insurance plans, it depends upon the plan and ranges from 5 years to 20 years. सुकन्या समृद्धि योजना, इसका 21 years का रहता है लॉक इन पीरियड, एंड देन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स 5 years प्लान, एंड नेशनल पेंशन स्कीम वो टिल रिटायरमेंट। सो दीज आर द लॉक इन पीरियड्स। सो वी शुड गो फॉर इन्वेस्टमेंट एंड चूज इट वेरी वाइजली बाय कंसिडरिंग आवर गोल। अगर हमारी रिक्वायरमेंट है लॉन्ग टर्म की है, भी हमें अपने बच्चों की स्टडीज़ या उसकी हम मतलब हायर स्टडीज़ या उसकी मैरिज के लिए या इस तरह से कुछ हम फंड्स जोड़ना चाहते हैं, तो हमें लॉन्ग रन का सोच के चलना चाहिए। और अगर हमें शॉर्ट टर्म लाइक आफ्टर 5 years वी नीड सम फंड्स फॉर लाइक से फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और एनी अदर प्रॉपर्टी, तो हमें 5 years का प्लान उस तरह से लेके चलना चाहिए। देर आर डिफरेंट स्कीम्स एंड वी शुड डाइवर्सिफाई आवर इन्वेस्टमेंट्स अकॉर्डिंगली। कुछ फंड्स हम PPF में डाल रहे हैं, कुछ FDs में, या कुछ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, and I think everyone, each one of us should adopt this scheme, and because we get very good returns out of it. बाकी plans में आपको कोई returns इतनी अच्छी नहीं मिलती, but mutual funds के अंदर there are chances of higher returns. So these are multiple different plans. और जो नेशनल पेंशन स्कीम है, ये 1,50,000 के अलावा आपको 50,000 का एडिशनल जो डिडक्शन है इसकी मिल सकती है। सेक्शन वाइज ऑप्शन सेक्शन 80D। ऑप्शंस अंडर सेक्शन 80D, डिडक्शन ऑफ मेडिकल प्रीमियम एक्सपेंडिचर एंड प्रिवेंटिंग हेल्थ चेकअप। सो ये एक बहुत ही मैंने एक स्नैपशॉट बनाया है, ये आप थोड़ा ध्यान से समझ लें।
देर आर डिफरेंट अवेलेबल ऑप्शन एज पर एज ब्रैकेट्स। तो हमें ये एज ब्रैकेट पहले समझनी है। इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सेल्फ बिलो 60 years एंड पेरेंट्स बिलो 60 years, then self below 60 and parents above 60 years, self above 60 years and parents above 60 years. तो देर आर लाइक डिफरेंट ऑप्शंस। आप पहले चूज कर लें आप किस में रिलाई कर रहे हैं। देन इफ अगर हम 60 साल से नीचे और हमारे पेरेंट्स भी 60 साल से नीचे हैं, तो हमें जो मैक्सिमम डिडक्शन अपने लिए मिलेगी 25,000 की, और पेरेंट्स के लिए भी 25,000 की, और टोटल जो मैक्सिमम डिडक्शन है 50,000 की रहेगी। अगर हम 60 से नीचे हैं, पेरेंट्स 60 से अबव हैं, तो टोटल 25 हमारी, 50 पेरेंट्स की, टोटल 75,000 का बेनिफिट हम इसमें ले सकते हैं। और दोनों ही अगर सीनियर सिटीजन में हैं तो 1 लाख तक का बेनिफिट मैक्सिमम 80D के अंदर मिल जाता है। तो आप समझ सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द एज ब्रैकेट। नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज अबव लिमिट इंक्लूड्स प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ ₹5,000 पर एनम। ये नहीं है आपको प्रीमियम ही इतना देना है तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी लेते हैं अप टू 5,000 इन अ ईयर, तो उसका बेनिफिट भी आप इसमें 80D के अंदर ले सकते हैं। Note number 2: if senior citizens are not covered under any health insurance, then medical expenditure incurred can be claimed under 80D up to ₹50,000. हाँ, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार सीनियर सिटीजन्स की इंश्योरेंस नहीं होती अपनी फैमिली के अंदर, तो हम अगर उनका कोई भी अगर मेडिकल एक्सपेंडिचर इंकर करते हैं, तो हम एडिशनली ये जो 50,000 है जो सीनियर सिटीजन्स का, जो 50,000 ऊपर, नॉट इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम बट इन द फॉर्म ऑफ एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंडिचर, कैन ऑल्सो बी क्लेम्ड अंडर सेक्शन 80D। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंड वैलिड पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है। सेक्शन वाइज ऑप्शंस, अदर इंपॉर्टेंट सेक्शंस, ये एक मैंने स्नैपशॉट दिया है जो आपको सारे जो ब्रीफ देगा बाकी सेक्शंस का हमें जो ध्यान में रखना है। सेक्शन 80EE, दिस सेक्शन इज फॉर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ होम लोन्स फॉर फर्स्ट टाइम होम ओनर्स फॉर एडिशनल ₹50,000 इफ लोन इज अवेल बिटवीन 1 April 2016 टू 31 March 2017। अगर इस पीरियड के अंदर हमने होम लोन अवेल किया है तो हमें 50,000 एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा ओवर एंड अबव जो 2 लाख की लिमिट है इंटरेस्ट ऑन होम लोन की। देन सेक्शन 24, इंटरेस्ट डिडक्शन फॉर हाउसिंग लोन अप टू ₹2 लाख, जो हमें पता ही है सबको। और 80EEB, ये है इंटरेस्ट डिडक्शन फॉर व्हीकल लोन ऑन परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये एक सेक्शन है, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पे लोन लेते हैं उसके इंटरेस्ट का बेनिफिट आप ले सकते हैं। सो ये मेरे ख्याल से काफ़ी ट्रेंड में रहेगा, बिकॉज आने वाला टाइम अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, तो हम इसको अवेल कर सकते हैं, इस बेनिफिट को यूटिलाइज कर सकते हैं। 80G, डोनेशंस टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। 80GG, इफ योर इनकम डज नॉट इंक्लूड HRA कंपोनेंट, यू कैन स्टिल क्लेम रेंट डिडक्शन अंडर 80GG। तो ये उनके लिए, जैसे कई कंपनीज या एम्प्लॉयर्स हमारे अगर HRA नहीं भी देते और अगर हम रेंट पे करते हैं, तो हम 80GG के अंदर रेंट को एज एन एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं, डिडक्शन की फॉर्म में, आई मीन टू से। देन सेक्शन 80TTA, डिडक्शन अप टू ₹10,000 फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड इन सेविंग बैंक अकाउंट। 10,000 तक का अगर सेविंग अकाउंट से हमें इंटरेस्ट इनकम है, वो उसको इनकम दिखाने के बाद हम उसकी डिडक्शन 80TTA के अंदर ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बेसिक मैंने जो सेक्शंस कवर किए हैं, हमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना है अपने गोल्स को ध्यान में रखते हुए। अब एक जो एडिशनल मैं कवर करने जा रहा हूँ, दिस इज़ फॉर सैलरीड, पर्टिकुलरली सैलरीड असेसीज ओनली। इसमें HRA की कैलकुलेशन बताऊंगा, HRA एग्जम्पशन एंड इट्स कैलकुलेशन। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आप समझ लें। अपार्ट फ्रॉम डिडक्शन अंडर स्पेसिफिक सेक्शन, सैलरीड एम्प्लॉय कैन क्लेम एग्जम्पशन ऑफ HRA विच इज़ कैलकुलेटेड एज पर बिलो। बड़ी मतलब ट्रिकी जरूर है, लेकिन इतना भी नहीं है, आप समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है, देर आर 3 मल्टीपल ऑप्शंस एंड HRA एग्जम्पशन विल बी द मिनिमम अमंग 3। As I mentioned, least among 3 as per below is allowed as HRA exemption. Okay, and actual HRA received as per salary certificate, जो हमारे सैलरी सर्टिफिकेट के अंदर लिख के आता है HRA जो कंपोनेंट जो हमें मिल रहा है वो अमाउंट। एंड देन B है 40% ऑफ बेसिक सैलरी फॉर नॉन मेट्रो रेजिडेंट्स एंड 50% ऑफ बेसिक सैलरी फॉर मेट्रो सिटी रेजिडेंट्स। इनकी आप कैलकुलेशन नोट करते जाएं, आप इसको आप लिख सकते हैं। Actual HRA which we are receiving as per salary certificate. Point number B, 40% of basic salary जो भी आएगा उसका 40% अगर हम नॉन मेट्रो में रह रहे हैं, 50% अगर मेट्रो में रह रहे हैं। देन एक्चुअल रेंट पेड
लेस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। से फॉर एग्जांपल अगर हम हमारी बेसिक सैलरी 20,000 है और हम रेंट पे कर रहे हैं 10,000, तो ये थर्ड सी की कैलकुलेशन आएगी, रेंट पेड इज 10,000 माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी विच इज 10% ऑफ 20,000 विच इज इक्वल टू 2,000। सो ये जो सी की कैलकुलेशन आएगी वो आएगी 10,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 8,000। तो विच एवर इज लोअर, इन तीनों में से जो लीस्ट रहेगा उसकी हमें एग्जाम्पशन मिलती है HRA के अंदर। Note 1. Assessee who is claiming deduction of interest and principal on home loan can still claim HRA if staying on a rent in a separate property. तो ऐसा नहीं है कि अगर हम होम लोन ले लिया और हम HRA का बेनिफिट नहीं ले सकते, स्टिल वी हैव द ऑप्शन टू अवेल बेनिफिट ऑफ HRA। एंड फॉर दैट इफ़ वी आर लाइक, अगर हम होम लोन लेते हैं किसी सेकंड प्रॉपर्टी के लिए ले लिया और रहे हम कहीं और रहे हैं और रेंट पे कर रहे हैं, तो हम इसका बेनिफिट तब भी ले सकते हैं, दोनों का, होम लोन के इंटरेस्ट का भी, प्रिंसिपल का भी और HRA का भी। Employer required landlord details including PAN if rent paid in a year is more than 1 lakh। अब जनरली क्या रहता है, एम्प्लॉयर डिमांड करता है पैन कार्ड्स भी आपके जो लैंडलॉर्ड्स हैं, तो वो उसी केस में करेगा अगर हमारा एनुअल रेंट 1 लाख से, सॉरी 1 लाख से ज़्यादा बन रहा है। तो उसमें मैं एक एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, अगर 1 लाख से ज़्यादा रेंट बन रहा है और अगर हम रेंट पे कर रहे हैं, तो आप अपने लैंडलॉर्ड को भी गाइड करें कि अपनी रिटर्न भरें और अपना रेंट उसमें डिक्लेयर करें। Note number 3. If an assessee missed to provide investment or expense proofs to employer, can still avail the exemptions or deductions while filing ITR and can claim refund of excess tax deduction along with interest. So, with the help of a practicing, I must say, a professional, you can still get the benefit of all those exemptions or deductions or rebates which are left while like giving declaration to the employer। कभी भी आप वो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR आप सारी डिटेल्स अपने टैक्स प्रोफेशनल को बताएं और वो उन उन बेनिफिट्स का क्लेम करके आपका रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। So the purpose is to get the utilization of all these available options। क्योंकि सैलरीड के पास क्या रहता है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो 50,000 की है, उसके अलावा हमारे पास ये सिर्फ जो ये अलाउंसेस हैं, जो एग्जम्प्टेड अलाउंसेस हैं सर्टन, या फिर 80C और 80D की एग्जम्पशंस हैं, या होम लोन के इंटरेस्ट की है, इस तरह की ऑप्शन ही बचती है। पर हमें वो ऑप्शंस भी बड़े ही ध्यान से लेनी है। और 80C को सिर्फ एज अ इन्वेस्टमेंट ही लेना, भी हमने कहीं भी कभी भी इन्वेस्ट कर दिया कहीं पे भी, पूरे ध्यान से उसका प्रॉपर आप बजट बनाएं, उसका इवन इनफ्लोज की जो ट्रैकिंग करें, एक्सपेक्टेड इनफ्लोज क्या हैं। मेरे ख्याल से अपार्ट फ्रॉम योर इंश्योरेंस, गो फॉर म्यूचुअल फंड्स लाइक स्कीम्स। मतलब और भी ऑप्शंस हैं, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट अगर टिपिकल इन्वेस्टमेंट देखें तो देर आर मल्टीपल ऑप्शंस, बट फ्रॉम 80C म्यूचुअल फंड्स जो 3 years प्लस वाले प्लान हैं स्पेसिफिकली फॉर 80C, उसमें हमें जाना चाहिए। So friends, I'll close this presentation with these remarks. Always be a wise taxpayer, a good tax planner, and a brilliant investor. I hope you might have this slide will definitely help you in planning in a proper way, and further to get the benefit of ATC and other sections and invest very in a very brilliant way. Thank you so much. And if you feel you really get benefit out of it, please like, subscribe, and also share. And you can also put your queries in the remarks column. Thank you so much.